बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म्स। इस उम्मीद के साथ कि आप पहला चैप्टर तैयार कर चुके होंगे। आज हमारा चैप्टर है सेकंड, जो टॉपिक है हमारा वो लिटरेरी टर्म्स है, जिसको कहते हैं अदबी इस्लाहात। अब ये क्या है? ये अदबी इस्लाहात जो हैं जिन्हें हम इंग्लिश लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं। लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी डिवाइसेस आर एनी टेक्निक्स दैट ऑथर्स यूज टू मेक देयर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है। A literary device is a linguistic or literary technique that creates a specific effect। जबकि इसके साथ इसकी टाइप जो है फिगरेटिव लैंग्वेज है, वो इसकी टाइप है लिटरेरी टर्म्स की, और जिसमें हम तशबीह और इस्तारे का इस्तेमाल करते हैं। तशबीह और इस्तारे वाली ज़बान उसको कहते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच is a specific term and it uses words or language that goes beyond its literal interpretation. For example, simile, metaphor, hyperbole, personification, etc. अब हम लिटरेरी टर्म्स को अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं जो हमारी लिटरेचर में इस्तेमाल होती हैं, और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको थोड़ा उस पर तफसीली डिस्कशन होगी। अल्फ़ाबेटिकली है ये एलेगरी, एलिट्रेशन, बैलेड, कैरेक्टराइजेशन, क्लाइमेक्स, कॉन्फ्लिक्ट, कैनोटेशन, डिक्शन, एपिग्राम, एपिग्राफ, फेबल, फिगरेटिव लैंग्वेज, हाइपरबोल, मेटाफर, पैरोडी, personification, plot, pun, rhyme scheme, rising action, satire, simile, soliloquy, stream of consciousness, suspense, symbol, syntax, understatement. Now we will see common literary terms. Number 1 है simile. Simile is a comparison between two unlike things using the words like or as। जैसे या जैसे के अल्फाज इस्तेमाल करके दो बरखिलाफ़ चीज़ों के माबेन एक मवाजना जो है वो सिमिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक पीस इन अ पॉट, एज ब्लाइंड एज अ बैट, ईट्स लाइक अ पिग, आई एम हैप्पी एज a clam, you are sly like a fox, he is strong like an ox। Second commonly used simile term is metaphor. What is metaphor? A metaphor makes a comparison between two unlike things or ideas. A metaphor is a direct and vivid comparison between two things usually considered distinct or unrelated. Metaphors discover the connection between unique things. For example, he is a fish, he is a fish out of water. Number 2, she is a night owl, she is a star in the sky. Heart of stone, she's a black sheep, her smile is the sun। ये मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या है? ये भी लिटरेरी टर्म है। पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज़। पर्सोनिफिकेशन गैर जिंदा चीज़ों या ख़यालात को इंसानी खसूसियत का नाम देने को कहते हैं। For example, I heard the wind whistling. Number 2, the water danced across my window. Number 3, the moon is smiling at me। हाइपरबोल क्या है? हाइपरबोल
is a remarkably exaggerated statement or idea meant to be taken figuratively rather than literally. Hyperbole exaggerates certain elements of ideas or things for comedic or dramatic effect. Here are a few examples of hyperbole. Number 1, I am so hungry I could eat a horse. Number 2, that was the best performance I've never seen in my entire life. Number 5, my literary device जो है वो है alliteration. Alliteration is the repetition of a certain sound at the beginning of successive words or phrases. Alliteration is used to create rhythm through repetition and to evoke emotion through connotations attached to certain sounds. For example, Sam swam smoothly and silently across the sound. Example number 2, Burhan brought bundles of bread to the bakery. Alliteration एक दूसरे के बाद लगे हुए अल्फाज या फ़िक्रे के आगाज़ में किसी ख़ास आवाज़ की तकरार है और इस तकरार के ज़रिए ये रिदम पैदा होता है और कुछ आवाज़ों से मुंसलिक मफ़हूम के ज़रिए जज्बात को जन्म देने के लिए ये alliteration का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है onomatopoeia. Onomatopoeia refers to words which sound like that which they described. Onomatopoeia creates a vivid reading experience as words are automatic forms of sound imagery. Onomatopoeia से मुराद वो अल्फाज हैं जो आवाज़ की तरह होते हैं जैसे वो बयान करते हैं. For example, the explosion erupted with a bomb. The leaves rustled in the whistling. Next, buzz or splat. Symbol. What is symbol? It is a person, object, action or idea that stand for something else. Is called symbol. Next, irony. Irony occurs when there is marked contrast between what is said and what is meant, or between appearance and reality. Irony इस वक्त होती है जब कहा जाता है और क्या मुराद है, या जो ज़ाहिर किया जाता है और हकीकत के दरमियान ये वाज़ेह फ़र्क होता है. Irony, the difference between appearance and reality. For example, a traffic cop gets suspended for not paying his parking tickets. Situational irony है. Number 2, how nice, she said when I told her I had to work all weekend. Verbal irony. When the audience knows the killer is hiding in a closet in a scary movie but the actors do not. Dramatic irony है इसमें. Next term है paradox. A paradox is a figure of speech that appears to be self-contradictory but actually reveals something truthful. एक तज़ाद तकरीर की एक शख्सियत है जो ख़ुद मतज़ाद दिखाई देती है लेकिन हकीकत में कुछ सच्चाई का इंकशाफ करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव टू स्पेंड मनी टू सेव इट. द ओनली रूल इज़ टू इग्नोर ऑल रूल्स. नेक्स्ट, पन. पन क्या है? ह्यूमरस यूज़ ऑफ वर्ड्स in order to make people laugh is called pun. A pun is a figure of speech that contains a play on words, such as using words that mean one thing to mean something else, or words that sound like alike in as a means of changing meaning. लोगों को हंसाने के लिए वर्ड्स के मज़ाहिर इस्तेमाल को पन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल,
A sleeping bull is called a bulldozer. Baseball players eat on home plates. Polar bears vote at the North Pole. So these are some important figure of speech. इस तरह से हमारे ये लिटरेरी टर्म्स को हमने डिफ़ाइन किया और उसमें जिसकी टाइप है फिगर ऑफ स्पीच उस पर फोकस किया और जो इम्पोर्टेंट हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसको भी हमने यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है। इसमें कुछ क्विज़ के तौर पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलने लगी हूँ। सबसे पहले सिमिली से रेलेवेंट है, चूज़ द मोस्ट सुटेबल आंसर दैट आइडेंटिफाइज द सिमिली इन द सेंटेंस। जॉन टीथ आर एज वाइट एज, हमारे पास ऑप्शन है चॉक, स्नो, क्लाउड, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा स्नो। नंबर 2, हिज मदर इज़ एज स्वीट एज केक, एप्पल, हनी, तो हनी को हम इसको टिक करेंगे। नंबर 3 है माई बेबी इज़ लाइक एन डॉल, विश, एंजल, तो एंजल जो है यहाँ पर सिमिली है। मेटाफर क्विज है, चूज़ द बेस्ट सुटेबल आंसर दैट आइडेंटिफाइज द मेटाफर इन द सेंटेंस। जॉन इज़ अ शीप, ही नेवर टेक्स एनी डिसीजन, तो इसके लिए जो बेस्ट जो इसके लिए जो मेटाफर है वो है जॉन इज़ अ फॉलोअर नॉट अ लीडर। माई ग्रैंड फादर इज़ अ रॉक, ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रोमिसेस, उसके लिए जो मेटाफर है माई ग्रैंड फादर इज़ रिलायबल। पर्सोनिफिकेशन क्विज जो है, चूज़ द बेस्ट मोस्ट suitable answer that identifies the metaphor in the sentence. What can be personified, किस चीज़ को पर्सोनीफाई किया जा सकता है? पीपल को, ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज़ को? बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़। व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन क्या है? अप्लाइंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सोनिफिकेशन एंड एंथ्रोमोफोरिज्म? इसमें आंसर जो है एंथ्रोमोफोरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स बिकम हाईली पर्सन लाइक। ठीक है, ये कुछ हमने आयरनी क्विज में से हम देखते हैं। सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन इज़, इसको क्या कहते हैं? सिचुएशनल आयरनी या वर्बल, तो ये वर्बल आयरनी है। और अब आपने इसको ये सारी जितनी भी लिटरेरी टर्म्स जो हैं इसमें आपने देखना है अपनी बुक में, और फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो मैंने डिस्कस की हैं आपने उसको एग्जांपल्स के साथ याद भी कर लेना है, और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, उसको भी आप सॉल्व करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम इससे अगला चैप्टर जो है वो देखेंगे। खुदा हाफिज़।